Hello, my dear students of class 9th. As per your demand, you are asking that what is the paper pattern and what is the syllabus for class 9th. I'm before you again because some changes were going on there because of the lockdown. So I'm again there with the revised syllabus and with the question papers. Okay, the how the paper pattern will be there for you all. So let's start the video there. कि आपका जो पेपर का नेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेपर, दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ओके, your paper name is there English language and literature, and its code is 184. Okay, you should remember what is the paper code there, 184, and this is for the session 20 and 21. ओके जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपका चल रहा है, जो आपके चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये जो पेपर पैटर्न मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है. ठीक है, तो 9th क्लास, लेट्स स्टार्ट नाउ. Section wise weightage. What will be the section wise weightage there? Annual examination will be of 80 marks and there will be internal assessment for 20 marks. Okay, 20 marks की आपकी internal assessment होगी और आपका annual examination कितने का होगा? 80 marks का होगा. Okay, now come to the weightage there. Reading section 20 marks, writing skill 30 marks, literature will come in 30 marks. So like this 80 marks question paper will be in your hands. Now section wise questions, what question will be there and what will be your first question, what will be second question. So question wise I will tell you that how the paper will be there. In the first question there will be a passage, unseen passage, factual passage of 300 words to 350 words. Okay, 300 और 350 वर्ड से लेके आपका एक पैसेज होगा, अनसीन पैसेज होगा, जिससे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, मींस इंक्लूडिंग एमसीक्यूज देयर एंड सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट, in 8 marks. Second question will again be the unseen passage of 350 to 400 words. Okay, and in this question they will ask you short question. Okay, some vocabulary part also be included there and MCQs means multiple choice questions, right. कि इस क्वेश्चन में आपका 12 मार्क्स का है तो आपके एमसीक्यूज भी होंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे. ठीक है, और इसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपसे पूछे जाएंगे. अब यहाँ पर वोकैबुलरी वर्ड्स में क्या, वोकैबुलरी वर्ड्स क्या होते हैं कि आपसे पैसेज वे से 2 और 3 क्वेश्चन, जो 2 और 3 वर्ड्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं. मोस्टली वैसे 2 ही वर्ड्स पूछते हैं आपसे यहाँ से, तो 2 वर्ड्स आपसे पूछेंगे, उनका आपको सेम मीनिंग भी पूछ सकते हैं. अदरवाइज दे कैन आस्क यू द रिवर्स, एडवर्स और अपोजिट मीनिंग आल्सो. लाइक रिवर्स, एडवर्स और अपोजिट मीन्स देयर कि उसका उल्टा, जो वर्ड आपसे पूछा गया है पेपर के अंदर, उसी का आपको उल्टा वर्ड जो उसकी सेंस जो निकलती है वो आपको पैसेज में से फाइंड करना होता है. ओके, नेक्स्ट इज देयर सेक्शन बी. In section B it will be writing skill, okay, and grammar also. It will come in 30 marks. So third question will be there of the latter, informal latter. They will give you some situation, okay, and they can ask you to write the descriptive paragraph also. Okay, diary entry can also be there, place, person, event you can include in this one. Okay, and it will be in 150 to 200 words based on the visual. आपको कुछ क्लूज दे जाएंगे, कुछ आपको विजुअल दिया जाएगा, जिसके बेस पे आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ मतलब डायरी एंट्री लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, विदाउट क्लूज भी हो सकता है यहाँ पर, और विजुअल भी दे सकते हैं यहाँ पे. मीन्स बोथ कंडीशन कैन बी देयर कि आपको कोई लेटर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स. ओके, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देयर विल बी ऑप्शन in this question, so you can attempt any one. Fourth question will be of writing story on the basis of the outline, on the basis of the clues, on the basis of the starting line given to you in the paper. कि स्टोरी जैसे आपकी अब तक आती रही है कि आपको पहले फर्स्ट लाइन दे दी जाती है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग लाइन के बाद उसको अपनी स्टोरी को एंड करना होता है. स्टार्टिंग से आपको स्टोरी क्रिएट करनी होती है, उसके बाद आपको एंड करना होता है विद अ हैप्पी एंडिंग. ओके, समटाइम इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लूज ऑल्सो, कि आपको कुछ क्लूज गिवन होते हैं, कुछ आपको लाइन्स गिवन होती हैं, उन लाइन्स के बेस पे आपको कुछ लाइन्स उनमें और ऐड करके एक स्टोरी, एक अच्छी सी स्टोरी डेवलप करनी होती है. ओके, एंड इन द स्टोरी राइटिंग ऑलवेज राइट द टाइटल ऑफ द स्टोरी, आफ्टर दैट स्टार्ट द स्टोरी विद द बिगिनिंग whatever is given to you in the question paper, then end the story and will always be happy. Okay, and after that you have to write a moral also in the story writing, and don't forget it will come in 10 marks. Okay, and diary entry or descriptive paragraph will also be 10 marks. But last year what was there, this latter was not included there. That last time only diary entry was given, article or diary entry.
लास्ट ईयर जो था आपका थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपका आर्टिकल और डायरी एंट्री में चॉइस आती थी, एंड दैट वाज ऑफ 8 मार्क्स, बट दिस ईयर इट इज ऑफ 10 मार्क्स, ओके, एंड डायरी एंट्री और लेटर में आपकी चॉइस रहेगी। नेक्स्ट जो आपकी स्टोरी, स्टोरी में भी आपकी चॉइस आती है, मींस 2 स्टोरीज विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू राइट एनी वन स्टोरी, ओके। Next, there for the grammar part. For grammar part, tense, models, and active passive voice, their word concord or reported speech, command, request, like this, many more topics are given to you. That on the basis of these grammar parts, they will ask you only the question of 4 marks. And how it will be there? Just look at this side. The above things, above items may be tested through टेस्ट टाइप्स ग्रामर इन कंटेस्ट एज गिवन बिलो। कैसे इसको टेस्ट करेंगे ग्रामर को? दे विल नॉट आस्क यू एनी डेफिनेशन, दे विल नॉट आस्क यू द टाइप्स, दे विल नॉट आस्क यू द डिटेल्ड ग्रामर टॉपिक। हाउ विल दे आस्क? दे विल गिव यू in the form of gap filling, in the form of editing, in the form of missing words, okay, or in the फॉर्म ऑफ क्लोज पैसेजेस। तो क्लोज पैसेजेस क्या होते हैं यहाँ पे कि आपको जो एक पैसेज गिवन होता है 5-6 लाइंस का, उस 5-6 लाइंस में आपको गैप भी दे सकता है कि आप गैप फिल कीजिए, जैसे ए ऑप्शन गैप फिलिंग आ गया, बी ऑप्शन गैप फिलिंग आ गया, फिर सी डी, इस तरह से आपके 4 जो ऑप्शन गिवन होंगे, या कई बार आपको 8 होते तो हाफ ऑफ मार्क्स में इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पैसेज गिवन होता है उसके अंदर फिलअप्स गिवन होते हैं, एंड जो फिलअप्स होते हैं उसके आपको ऑप्शन भी गिवन होते हैं नीचे। यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4, मींस लाइक अगर ए का आपका ए ऑप्शन आपका गिवन है तो ए जो आपका फिल इन द ब्लैंक है उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन। अगेन बी आपका फिलअप है तो बी फिलअप जो आपकी लाइन के अंदर है उसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, लाइक दिस ए बी सी डी वट एवर द फिलअप विल बी देयर, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन फॉर द ईच fill-up, okay, and close passages will be there like this. Secondly, missing words or correct incorrect, so any one will be given to you in the examination in 4 marks only. So the above grammar topics will be tested on the basis of this gap filling, missing words, okay, editing means their correct incorrect words in case of close passages there, okay. Next, the sixth question. Sixth question is now newly added in your syllabus, in your paper pattern. And what is this one? Sixth question is their dialogue writing or report dialogue on a given clues. जो given आपके clues होंगे उनके बेस पे आपको क्या करना होगा? डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। अब डायलॉग राइटिंग होती क्या? डायलॉग्स क्या होते हैं? जैसे मैं स्पीक करूँ, these are my dialogues. If you are speaking something, those will be your dialogues. तो मीन्स टू से कि अगर 2 फ्रेंड्स हैं तो दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या करेंगे, जो भी वो स्पीक कर रहे हैं दैट इज देयर डायलॉग। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट द डायलॉग्स, ओके। देन रिपोर्टिंग डायलॉग। रिपोर्टिंग डायलॉग्स क्या होते हैं कि जैसे कोई थर्ड पर्सन जो है वो बताता है किसी के बारे में कि भाई उसने ये कहा, वो ये ऐसे बोल रहा था। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जब हम यूज करते हैं किसी की एज इट इज वर्डिंग, दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग डायलॉग, कि हमने किसी के जो डायलॉग उनको रिपोर्ट किया है, एज इट इज हम किसी को बता रहे हैं कि वो ये कह रहा था, ठीक है। जैसे आपके नरेशंस के अंदर होता है, उसके अंदर आपके एज इट इज जो है वो गिवन होते हैं कि ही सेड, उसने क्या कहा, ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये क्या उसने उसने एज इट इज बोला ना, तो उसकी एज इट इज वर्डिंग को अगर आप एज इट इज किसी को बता रहे हो, थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि उस पर्सन ने ये कहा था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज करोगे, एंड दैट इज नोन एज योर रिपोर्टिंग डायलॉग। तो आपको कुछ क्लूज गिवन होंगे कि उसने ये कहा, वो कहा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जैसे मैसेज के अंदर आपको गिवन होते कुछ लाइंस और उनके बेस पे आपको क्या करना होता है, मैसेज राइटिंग करना होता था। नाउ दिस टाइम यू हैव टू राइट रिपोर्टिंग डायलॉग, otherwise dialogue writing, anyone will be given to you in 6 marks. लास्ट टाइम आपको रीऑर्डरिंग होते थे आपके, आपकी बार रीऑर्डरिंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, दैट इज डिडक्टेड एंड दिस पार्ट इज एडेड देयर इन 6 marks, okay. Now it was the change, okay, I think all you got what is the change this time in the paper pattern. Next is their section C literature, it will come in 30 marks, okay. And in 30 marks first question will be your extract, आपको एक्सट्रैक्ट गिवन होगा, दैट कैन बी फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन, दैट कैन बी फ्रॉम द प्रोज सेक्शन। मींस आपकी पोइट्री सेक्शन जो होते हैं पोएम्स में से आपको मिलेंगी, 3 और 4 लाइंस आपकी पोएम में से होती है, उन पोएम के लाइंस के बेस पे, उनके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू गिव रिप्लाई ऑफ दोस क्वेश्चंस। और एक आपका प्रोज में से होता है, मींस आपके चैप्टर्स के बीच में से कुछ भी लाइंस उठा करके वो दे सकता है, जैसे 3-4 लाइंस उसने उठा के दी, 4 लाइंस मैक्सिमम दे दी उसने, और उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस वो यहाँ पर डीपली पूछ सकता है। सो all you have to go through the chapters also deeply, right?
The next question will be of the short questions. 7 questions will be given to you. Out of 7, you have to attempt any 5. So option is there. Okay, and questions will be there from beehive and movements. It will include your poetry section also from the book. कि बुक में आपका जो पोइट्री सेक्शन है, जो आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो मूवमेंट्स है, चाहे वो बी हाई बुक है, तो उन दोनों बुक्स में से आपके क्या होंगे, यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस विल बी टेकन फ्रॉम those, and you have to attempt any 5 in 30 to 40 words. If you are writing 30 words, that is also enough for 2 marks. 2 marks में आप 3 lines लिख दीजिए, that is enough. Means according to the question, your answer should be completed. आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर वो कंप्लीट सेंस देता हो और आपके 30 वर्ड्स कंप्लीट होते हो. मींस यू कैन कंप्लीट योर 30 वर्ड्स इन 3 लाइंस. सो 3 लाइंस आर इनफ देयर. नेक्स्ट इज देयर लॉन्ग क्वेश्चन. सो लॉन्ग क्वेश्चन देयर कि बी हाइव से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होंगे. उन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 8 मार्क्स. 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपकी लेंथ बढ़ चुकी है, तो 8 मार्क के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे. बिहाइव से आपके 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे. आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन. अकॉर्डिंग टू 8 मार्क्स यू हैव टू राइट, एंड द वर्ड लिमिटेशन विल बी ऑफ अप टू 150 वर्ड्स. मींस टू से कि वन साइड जो आपकी आंसर शीट होती है उसको आप फिल करो, उसको आप कंप्लीट करो, दैट विल बी इनफ फॉर यू ऑल. और अगर उसमें से भी 3-4 लाइंस आपकी रह जाते हैं, नो इश्यूज. मींस 150 वर्ड्स यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू 8 marks long question. Now the next and last question of your paper will be again a long question of 8 marks, and that will come from movements. Okay, so movements book से भी 2 question होंगे आपके long question. You have to write any one. Behind से भी आपके 2 questions होंगे. You have to attempt any one, and it can include your plot. कोई भी आपका plot वो पूछ सकता है आपसे, कोई character sketch पूछ सकता है, कुछ भी चीज मतलब extra आपको 3-4 क्वेश्चन उसमें ऐड करके आपसे हर चीज पूछ सकता है. नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होता है और उस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन उसी के अंदर पूछता है, then you have to give reply of every part of the question. Okay, if you will not write even a single part of the question, then your marks will be deducted whether you have written the proper length of the answer. अगर आपने मान लो आपको 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो 4 क्वेश्चन में से आपने अगर 2 का ही रिप्लाई उसके अंदर गिवन, तो आपको 4 मार्क्स ही गिवन होंगे. आपको 4 मार्क्स ही दिए जाएंगे, चाहे आपने 150 के को भी इंक्रीज कर दिया, क्रॉस कर दिया, चाहे आपने फुल पेज क्यों ना फिल कर दिया हो, क्योंकि ये आपका डिपेंड होता है आपके आंसर के ऊपर. लेंथ आपकी 150 वर्ड्स तक है. ओके, वन साइड ऑफ द आंसर शीट आप लिख सकते हो उसको, ठीक है. बट ये भी जरूरी है कि अगर आपको ऑप्शन में गिवन है 4 ऑप्शन दे रखे, आपको 4 क्वेश्चन उसने पूछ लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हीं जो 4 पार्ट्स होते हैं उनको सबको डिस्क्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इक्वली यू हैव टू डिस्क्राइब, ये नहीं कि एक पार्ट को बहुत ज्यादा लिख दिया और जो रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन उसमें पूछे हुए हैं उनको आपने बिल्कुल एक एक लाइन में लिख दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इक्वली यू हैव टू डिस्क्राइब इन लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जितना भी उसने पूछा है हर एक पार्ट का सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको देना होगा. अगर आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं देते, आप किसी भी पार्ट को छोड़ देते हो, तो उसकी अकॉर्डिंग उसकी जो वेटेज बनती है उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा. जैसे मान लो आपके 4 क्वेश्चंस पूछ लिए उसको उसने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो आपका हर पार्ट कितने का बन गया, 2-2 मार्क्स का बन गया. ठीक है, तो 2 4 8 हो गया. अगर आपने 2 पार्ट नहीं लिखे, उसके 2 पार्ट्स का ही रिप्लाई अपने आंसर में देते हो, तो इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ 4 मार्क्स ही मिलेंगे. और 4 मार्क्स भी तब मिलेंगे अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपके 4 मार्क्स में से उसको कंसिडर किया जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. यू हैव टू गिव रिप्लाई ऑफ एवरी part of your question, whatever is asked, whether that is in short question or in long question. Okay, and the last I will tell you how the internal assessment will be taken there. So in internal assessment, listening skill and speaking skill, everybody is familiar with this skill. So what is there? लिसनिंग स्किल, एक ऑडियो आपको सुनाई जाती है ट्वाइसली. उस ऑडियो के बेस पे आपको क्या करना होता है, एक वर्कशीट गिवन होती है, उस वर्कशीट के अंदर आप टिक मार्क करते हो, ऑप्शंस को करेक्ट करते हो. ओके, दैट विल बी योर लिसनिंग स्किल. मींस टू से बिकॉज ऑफ दिस स्किल द एग्जामिनर और द ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व दैट हाउ मच लिसनिंग पावर डू यू हैव, कि आपकी लिसनिंग पावर कितनी अच्छी है. आपका जो टीचर है, जो आपका इवेल्युएटर है, वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करता है. Second is speaking skills. In speaking skill, you have to speak about a topic, and after that you have to discuss a problem task with your partner. Okay.
So this task will be considered in 5 marks only, right? This is very lengthy process, but this will be considered in 5 marks only. So rest of the 15 marks will be taken on the behalf of your copy maintenance and on the behalf of your periodic test marks. Okay, so 15 marks में आपकी नोटबुक को कंसीडर करते हैं, जो आपने एक्टिविटीज की हैं, जो आपने परफॉर्म किया है पूरा साल स्कूल के अंदर, या फिर आपकी जो यहाँ पर फिर पीरियोडिक टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं उनको भी यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं. ओके, सो इट वाज योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस. सो नो चेंज इज इन द सिलेबस. सिलेबस में कोई चेंज नहीं है. सिलेबस में क्या आपका आपके बी हाइव और जो मूवमेंट्स बुक है एज इट इज रहेंगे. इनमें से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है. ठीक है, इन दोनों बुक्स में से कोई भी चैप्टर आपका डिलीट नहीं हुआ है. ये चैप्टर आपके एज इट इज रहेंगे. ये जो पेपर पैटर्न है आपका, जो राइटिंग सेक्शन है, वहां पर जो चेंज हुआ है पेपर पैटर्न में, मैंने आपको बता दिया कि कैसे है. अब इन सारे जो चेंजेस होते हैं या फिर जो भी आपका सिलेबस उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले चैनल के ऊपर आएंगे, क्योंकि चैनल पे पहले हम डालेंगे, उसके बाद ही हम ईआरपी पे आपको डालते हैं कि 1 बाय 1 जैसे आपकी टर्न होते कि आज इंग्लिश के सब्जेक्ट की टर्न है तो हमने उसको डाल दिया. अगर आप चाहते हो कि आपको पहले ही मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो, चाहे वो ग्रामर की वीडियोज होंगी, चाहे वो 9th की, 10th की, 11th 12th किसी भी क्लास के, आपके पास पहले ही मैसेज आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो गई है. अगर आपको जो भी उसमें देखनी है, मान लो ग्रामर रिलेटेड देखनी है, तो ग्रामर रिलेटेड वीडियो आप वहां पे देख सकते हो और उन वीडियोस को आप क्या कर सकते हो, अपनी ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास वीडियो पहले पहुंच जाएगी. ठीक है, और जो ईआरपी पे होगा वो आपके होमवर्क के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा कि जब भी आपकी टर्न है इंग्लिश सब्जेक्ट की तभी हम उसको वहां पे अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना है तो आप सब्सक्राइब कर लेना. ओके, and what will you do after watching this one? You will write a neat and clean the paper pattern according to you. ओके, whatever is suitability to you, कि शॉर्ट फॉर्म में इसको पेपर पैटर्न को आपने रजिस्टर के अंदर लिखना है. जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना कि फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो पैसेज आ गया, सेकंड में पैसेज आ गए 8 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स का है, और थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, फोर्थ में. मींस क्वेश्चन वाइज यू हैव टू मेक अ पेपर पैटर्न इन योर रजिस्टर. आपको अपने रजिस्टर के अंदर इसको लिखना है, नीट एंड क्लीन आपको उतारना है. और कैसे उतारना है कि क्वेश्चन वाइज इसमें लिखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, और ये इतने मार्क्स का आ रहा है, ये इतने मार्क्स का आ रहा है. ठीक है, इस तरह से आपने जो है पेपर पैटर्न को यहाँ पर लिखना है अपने नोटबुक के अंदर. एंड दिस इज ओनली फॉर द सेशन 2021. ये जो आपका पेपर पैटर्न जो सिलेबस मैंने बताया, ये सारा किसके अकॉर्डिंग है, सेशन 2021 के अकॉर्डिंग है, विच इज गोइंग ऑन, विच इज डन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. जो लॉकडाउन की वजह से है जो चेंजेस हुए हैं ये इस ईयर के लिए. ठीक है, मे बी नेक्स्ट ईयर सम चेंजेस विल बी देयर, कि नेक्स्ट के सेशन में कुछ और भी चेंज हो सकते हैं, तो ये स्पेशली इसी सेशन के लिए. ओके, so I think you all would like this one. Thank you so much for watching the video. Have a nice day everybody.